Hello, how are you? Welcome you all in SK tutorial. Today I am here with Flamingo's poem 3 Keeping Quiet, composed by Pablo Neruda. Let's have a glance on the biography of Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in 1904 and died in 1973. Pablo Neruda is the pen name of Naftali Ricardo Reyes Basualto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poem and full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and retrospection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. इस पोयम में नेरुडा ने शांति से अपने अंदर झांकने और लोगों से आपसी समझ की भावना का विकास करने पर बल दिया है. So let us start this poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक गिनेंगे और हम अब शांत रहेंगे. In this two lines there is poetic device which is antithesis. On one hand, the poet is urging us to count to 12, while on the other hand, he is urging that keep still. एक तरफ तो पोएट हमसे कहता है कि हम काउंट करें 12 तक और दूसरी तरफ कहता है कि वो हम सभी लोग बिल्कुल शांत रहें. तो हाउ इज़ इट पॉसिबल साइमल्टेनियसली बोथ वर्क? मीन्स दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? काउंटिंग भी हो और हम शांत भी रहें. It is not possible. So the antithesis is what? Means two opposite ideas when comes together, that is antithesis. So यहाँ antithesis poetic device का यूज़ हुआ है और we means W and W, the letter in we will assonance, that is alliteration, और assonance vowel sounds A, O और E का यूज़ हुआ है. जैसे नाउ में O, वी में E, काउंट में O U, टू में टू में O, and in 12 E letter is used. That is what? Assonance. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So here the poet again says that for once, एक बार के लिए, केवल एक बार के लिए इस धरती पर किसी भी भाषा का हम उपयोग नहीं करेंगे. इन किसी भी भाषा में हम नहीं बोलेंगे. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और हम सभी 1 सेकेंड के लिए रुक जाते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और हम अपने हाथों को भी बिल्कुल नहीं हिलाते हैं. सो हियर एनी लैंग्वेज सिंबलाइज, सिंबल का यूज़ किया गया. लैंग्वेज मीन्स as you know that throughout the world many religions and caste and creeds are there, and people uses different languages, and these languages are basically the barriers of the brotherhood, to maintain the brotherhood.
So the poet is urging us to do not use any language, rather the language of silence we must use. सो पोएट कहता है कि हम किसी भी भाषा का उपयोग नहीं करें, क्योंकि भाषा ही एक बैरियर का काम करती है, एक बाधक है मानवता के लिए, जो एक दूसरे को जोड़ने के लिए। इसलिए हम किसी भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, केवल हम शांति की भाषा का उपयोग करेंगे, केवल हम शांत रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, केवल 1 सेकेंड के लिए हम कम से कम स्टॉप रहें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने हाथों को ना हिलाएं। हियर आर्म्स में जो है पोएटिक डिवाइस है, जो पोएटिक डिवाइस है। आर्म्स का यहाँ पे 2 मतलब है। वन इज आर्म मीन्स आवर हैंड, एंड द सेकेंड इज वेपन। सो यहाँ पे आर्म्स which has 2 meanings itself, and the figure of speech is pun. And let's in the paragraph, in these 2 paragraphs, the first word is let's. So it is what? It is anaphora, figure of speech, anaphora. It would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. So पोएट कहता है कि बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी इंजन के, यह एक बेहद ही एक अजीब सी चीज़ होगी, अजीब सा क्षण होगा कि अचानक आए विचित्रपन में हम सभी लोग एक साथ होंगे। एक अजीब सी सिचुएशन होगी वो। तो एग्जॉटिक मोमेंट मीन एक ऐसा अनयूजुअल मोमेंट होगा जिसमें कि सभी लोग बिल्कुल सेम सिचुएशन में होंगे, विदाउट रश। कोई भी nobody will be in hurry to go somewhere like going for job or any type of work. किसी भी काम के लिए कोई जाएगा नहीं, सब अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल बिल्कुल रहेंगे, विदाउट एन इंजन। कोई फैक्ट्री, कोई भी मशीनरी वर्क नहीं करेगी। एंड वी विल बी ऑल टुगेदर, और हम सभी लोग बिल्कुल साथ रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक बिल्कुल स्ट्रेंजफुल सिचुएशन होगी, एक अचानक से जो कि सब कुछ बिल्कुल थम सा गया। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी और चारों तरफ एक ही चीज़ होगी, दैट इज़ कॉमन टू ऑल प्लेसेस, दैट इज़ साइलेंस, डीप साइलेंस। सो fisherman in the cold sea would not, one more thing in this para, without rush, without engine. So without the word 2 times has used, that is repetition. And the third line, we would means w, the word ww in we and the would is repeated, that is alliteration. And in sudden strangeness, sudden s and strangeness में s, तो ये भी क्या है? एंटीथेसिस। सो इसमें रेपिटेशन और एलिट्रेशन, रेपिटेशन और एलिट्रेशन का यूज हुआ है। ओके, नाउ fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. So fisherman is symbolic here, and it is representing the oppressor, the people who oppressed others. So powerful persons of the society. In the cold sea is imagery. Cold sea is just imagery. तो यहाँ पे एक इमेजरी का वो पोएटिक डिवाइस है, उसका यूज़ किया गया है। एंड फिशरमैन एक सिंबॉलिक है, जो सिंबल, जो पोएटिक डिवाइस है उसका यूज़ किया गया है, जो ऑपरेसर्स, इसका मीनिंग है यहाँ पे।
would not harm whales. यानी यहाँ पे फर्स्टली एक सिंपल मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज़ दैट कि ठंडे समुद्र में मछलियों पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं, जैसे वेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नमक इकट्ठा करने वालों अपनी घायल हाथों को देखेगा. इट्स मीन व्हाट? इट्स मीन दैट मीन्स whale is symbolized oppressed people and fisherman is symbolizing oppressor. मीन्स जो सोसाइटी के जो पावरफुल लोग हैं वो कैसे सोसाइटी के जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको कैसे वो ऑपरेस्ड करते हैं उसको दिखाया गया है. तो ऑपरेस्ड पीपल मीन्स डाउन ट्रोडन पीपल, वीक पीपल ऑफ द सोसाइटी, उनको रिप्रेजेंट किया गया है वेल से. और जो ताकतवर लोग हैं, पावरफुल लोग हैं सोसाइटी के, उनको रिप्रेजेंट किया गया है, सिम्बलाइज किया गया है फिशरमैन से. ओके. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट would look at his hurt hand. Here the poet wants to tell us that we must look the consequences of our deed. We just harming our nature just to gaining profit and for our self development. So ultimately the consequences of these deeds will be not profitable. It will harm us, harm our nature, harm and ultimately harm the mankind. So यहाँ पे एक पोएट ने इस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया है कि गैदरिंग सॉल्ट, जो लोग गैदरिंग सॉल्ट को गैदर कर रहे हैं, अल्टीमेटली उनके हैंड्स को देखिए कि वो उनका हाथ उस सॉल्ट को गैदर करते करते वो पूरी तरह से छिल जाता है या पूरी तरह से वो ख़राब हो जाता है. सो लाइक दैट हम सभी लोग अपनी प्रोग्रेस में, अपनी डेवलपमेंट में नेचर को कितना हार्म कर रहे हैं और अल्टीमेटली उसका नेचर उसका किस तरह से बदला लेता है, रिवेंज लेता है, और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, रिज़ल्ट क्या होते हैं आखिरकार इस डेवलपमेंट के. तो इस चीज़ को ये पोएट यहाँ बताना चाहता है कि हम अगर प्रोग्रेस करना, डेवलप करना इज़ अ नॉट बैड थिंग, इज़ अ गुड थिंग, कि हम एक पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और सभी को डेवलप करना चाहिए. डेवलपमेंट इज़ नेसेसिटी ऑफ द लाइफ. चेंजेस and development is very it has a great matter in everyone's life, but development के साथ साथ हमें अपने नेचर को भी प्रोटेक्ट करना है. यहाँ पर पोएट ये दे रहा है. अगर हम वो नहीं करते हैं तो नेचर हमें हर्ट करता है अल्टीमेटली. सो नाउ द नेक्स्ट लाइन. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. This is important line. Those who prepare green wars, जो लोग means those who are prepared green wars means those who are involved in deforestation, activity of deforestation, जो लोग पेड़ों को काट रहे हैं, ग्रीनरीज को एरेडिकेट कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन लोगों को पोएट जो है वो वार्न कर रहा है. वॉर्स विद गैस, जो लोग गैस मीन्स केमिकल्स, वेपन्स, केमिकल्स का जो लोग यूज़ कर रहे हैं. एंड वॉर विद फायर, और जो लोग फायर मीन्स बॉम्ब्स, जो लोग युद्ध कर रहे हैं, फायर आर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. सो अल्टीमेटली इफ यू get victory, but who will be left to avail this victory, because no one will be left or remain alive. So for whom pleasure this victory will be there. So here
तो द पोएट इज सेइंग कि हम ये जो इतनी सारी वेपन्स का यूज़ कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, नेचर को इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और आखिरकार होगा क्या? सभी लोग अल्टीमेटली इस लड़ाई में मारे जाएंगे, और फिर वो जीत भी किस काम की होगी जिसमें कोई जिंदा ही नहीं रहेगा। सो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। सो यहाँ अर्ज करता है कि हम क्लीन क्लोथ्स, सो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पर एक मेटाफर का यूज़ किया गया है। मेटाफर है पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। इसका मतलब है मीन्स सोल, clean our soul, clean our mind, clean our heart, purging it of all anger and hatred। यानी हम अपने सोल को, अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, दिमाग को साफ करें, शुद्ध करें, और हम अपने मन से ये जितने एंगर हैं, हैट्रेड है, नफरत है, गुस्सा है, ये सब हम निकाल दें। सो पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स इज मेटाफोर। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अपने भाइयों के साथ चलें, भाइयों को साथ लेके चलें। हियर ब्रदर्स मीन्स, ब्रदर्स वर्ड इज सिंबल, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच, और इट्स मीन दैट मैनकाइंड, पूरी मानवता की बात की गई है। इन द शेड, शेड में लेके चलें, शेड डूइंग नथिंग, और वहाँ पे कुछ ना करें, नथिंग वी हैव टू डू ओवर देयर, we have to sit in under the shed and think about the mankind. So in the shed is also metaphor is used there, as shed protect us from the harsh sun, rain, etc. So like that, under the tree in the shed we must be there just to do something, to meditate, and to just to retrospect and introspection. सो इस पैरा में एक एजोनेंस का यूज़ है यहाँ पे, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर में एजोनेंस लेटर है ओ, विक्ट्री में ओ, और नो में ओ, और सर्वाइवर में ओ, एंड विद में आई। तो ये एजोनेंस जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका यूज़ हुआ है। और वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, सो वॉर्स विद 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, विच इज़ रेपिटिशन। एंड डब्ल्यू भी 4 टाइम्स यूज़ हुआ है इस लाइन में, इट इज़ वॉट, इट इज़ एलिट्रेशन। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. So in this line, the poet is just want to clarify that he doesn't mean to say that we become inactive. So he's saying कि don't be confused with my statement, कि मैं किसी इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि सभी लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, उदासीन हो जाएं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, मतलब ज़िंदगी वही है जो इसके बारे में होता है। लाइफ विल गो ऑन लाइक दैट ओनली। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कह रहे मेरा डेथ से कोई एसोसिएशन नहीं है। तो नो ट्रक विद एक दैट इज़ इडियम, और इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच यूफिज्म का यूज़ हुआ है। तो नो ट्रक विद का मतलब होता है कि नो एसोसिएशन, मतलब मेरा उस चीज़ से कोई संबंध नहीं है। तो आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, मतलब मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं किसी तरह की इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पोएट क्लैरिफाई कर रहा है कि इनएक्टिविटी और डेथ, इन 2 चीज़ों की बात नहीं कर रहा है कि सब कुछ रुक जाए, सब कुछ शांत हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं या सभी लोग मर जाएं, डेथ हो जाए, पूरी तरह से साइलेंस हो जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड मीन्स हम अगर सेल्फ सेंटर्ड नहीं है,
कि यदि हम अपने जीवन को चलते हुए रखने का एकमात्र उद्देश्य नहीं रखते हैं कि हमें केवल अपनी लाइफ से मतलब है, ठीक है, कि अबाउट कीपिंग आवर लाइफ से मूविंग, कि हम केवल सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, कि वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट आवर सेल्व्स, आवर फैमिली. What about others? Who will think about others? Who will think about the society? Who will think about the nation and its environment? So पोएट यहाँ पे अर्ज कर रहा है कि हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश नहीं होना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है. एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार केवल ऐसा करें कि कुछ ना करें, कुछ ना करते हुए परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद पूरी तरह से एक चुप्पी साध लें, हम सभी लोग शांत हो जाएं. और वो शांति किस लिए? इंट्रोस्पेक्शन के लिए, अपने आप को एग्जामिन करने के लिए कि व्हाट वी आर डूइंग, इज इट राइट, और व्हाट वी डिड दैट वाज राइट और रॉन्ग, एंड व्हाट शुड वी डू नाउ इन आवर फ्यूचर. सो यहाँ पे एक कह रहा है कि ह्यूज साइलेंस होना चाहिए, बिल्कुल शांति होनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को समझ सकें, जो हम कर रहे हैं उसकी गलतियों को समझ सकें और भविष्य के लिए एक अच्छा इंसान बन सकें. माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. सो हमारी लाइफ में जो सैडनेस है, हम सभी लोग सैड हैं आज लाइफ में, नोबडी इज़ कम्प्लीटली हैप्पी, ठीक है. सो ये सैडनेस हो सकता है कि इस 2 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए साइलेंस से हो सकता है कि सैडनेस दूर हो जाए, क्योंकि हम इस साइलेंस में अपने आप को परखेंगे, अपने आप को जानेंगे और उस कमियों के बारे में जानेंगे जिससे ये सैडनेस क्रिएट हुई है. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स. वो सैडनेस किस वजह से है? क्योंकि हमने अपने आप को कभी समझने की कोशिश नहीं की. We never tried to understand ourselves. We never tried to spare some time to introspect, and of threatening ourselves with death. और लगातार हम मृत्यु से डरते हैं, हम अपने आप को खुद नहीं समझ पाते हैं और मृत्यु के डर से हम उदास रहते हैं, डरे रहते हैं. So if we become silent for few moments and do meditation, introspection, retrospection, then the fear of death and all the worries of life will vanish or will reduce gradually after regular introspection time to time. तो इस तरह से हम थोड़ी से साइलेंस से अपने आप को, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी गलतियों को ढूंढ सकते हैं और अपने अंदर का डर जो है वो दूर कर सकते हैं. सो इस लाइन में आपने देखा जो ट्रक विद नो डेथ, ये एक यूफिज्म है, और सेल्फ माइंडेड, सिंगल माइंडेड मीन्स क्या है कि सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश नहीं होना है हमें. नाउ नेक्स्ट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, as when everything seems dead and later proves to be alive. So शायद ये धरती हमें सिखा सकती है, जब हर एक चीज़ मरी हुई प्रतीत होती है और बाद में वो जीवित साबित होती है. So the earth can teach us, यहाँ पे धरती हमें सिखा सकती है, means personification. The figure of the poetic device is what? Personification. अर्थ टीच करे, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, टीचिंग. सो ये क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी को एसोसिएट किया गया है अर्थ से, ठीक है. सो इट इज़ व्हाट? पर्सोनिफिकेशन एंड सिंबॉलिक ऑल्सो. सो पर्सोनिफिकेशन एंड सिंबल बोथ यू कैन से. एंड द नेक्स्ट इज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव. सो ऑन वन हैंड the poet is saying that everything seems dead and alive. So here also antithesis, the poetic device antithesis is used here, कि दो अपोजिट आइडियाज़ की बात कर रहा है पोएट यहाँ पे, कि जब हमें सब कुछ डेड दिखाई देती है तो बाद में कुछ चीज़ें प्रूव होती हैं कि वो जिंदा हैं.
यानी यहाँ पे पोएट कहता है कि अगर हम खुद नहीं सुधरेंगे, खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं, शांति नहीं बनाते हैं, तो ये धरती हमें खुद सिखा देगी। मीन्स कुछ ऐसे डिवास्टेशन आएंगे, कुछ कैटास्ट्रोफ्स, जिससे कि अल्टीमेटली नेचर खुद जो है रिवेंज लेती है। तो नेचर जब बदला लेगी, लाइक दीज आर कोरोना पीरियड, you know, that nature teaches us many things, and we are in same situation all over the world. Everyone are in, means isolated, they are quarantined. So nature is teaching us these times, so we can correlate this situation with this poem. ये समय हमें रेट्रोस्पेक्शन और इंट्रोस्पेक्शन का है. So God has given us this time just to introspect and retrospect. So we can reform ourselves and make our coming future and our nation, our India, great. And latter proves to be alive. So कभी कभी जो लगता है कि ये सारी चीज़ें डेड हो चुकी हैं, वो बाद में वो आपको एक अलाइव दिखती हैं, नई दिखती हैं, नई चीज़ें उभर के आती हैं. सो इस शांति के बाद जो हम रेट्रोस्पेक्शन के टाइम में जो एक सेकंड के लिए हम साइलेंस जो हम रखेंगे, तो प्रेजेंट में ऐसा लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल साइलेंट है, सब कुछ डेड हो चुका है. लेकिन आफ्टर दिस साइलेंस जो नई चीज़ें आएंगी, वो एक नया भविष्य लेकर आएंगी, एक न्यू फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर, एक न्यू थिंकिंग, एक इनोवेशन लेकर आएंगी. सो पोएट ने यहाँ पे ये अर्ज किया है साइलेंस के लिए. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. सो अगेन एट द लास्ट the poet is saying, urging that कि मैं 12 तक काउंट करता हूँ और आप चुप रहेंगे और मैं अब जाऊँगा यहाँ से. So poet is saying that what I wanted to convey, what message I wanted to convey you, so by counting 12 I conveyed you. Now it is your duty just to be keep quiet, just to introspect and retrospect yourselves and make your help your and you help you yourself and others to do better and make their future in a better way, to run the life in a better way with peace, prosperity, silence, serenity, without war, without any weapon, without any chemical, without the loss of greenery, without harming our nature. With peace and silence and kindness we live forever. और अंत में कहता है कि मैंने अपना मैसेज आपको कन्वे कर दिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा. So now poem is ending here, and I hope that you understood this poem well. If you have any doubt or any suggestion, kindly just convey your message in this description box. And thank you very much. And please, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें. प्लीज़ do it, do subscribe and share and like my videos. Thank you.